We're starting a new topic, and that is growing in the knowledge of God. आज हम नया विषय शुरू करने जा रहे हैं पर प्रभु के ज्ञान में बढ़ते जाना। I'll try my best to go very slowly because I want us to absorb everything that is shared. भाई कहते हैं कि मैं थोड़ा धीरे चलूंगा ताकि जो भी हम वचन बांट रहे हैं वो पूरी रीति से समझा जाए। The greatest thing in our life is to know our Creator. और हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे परमेश्वर को जानना And to know Him more and more. और उसको अधिकाई से जानना। There's no limit to knowing God. और परमेश्वर को जानने के लिए कोई सीमा नहीं है। In John chapter 17, verse 3, यूहन्ना 3 और उसका 17 chapter verse 3, 17 और 3. 17 उसका तीसरा आयत में हम पढ़ते हैं। When the Lord spoke to the Father in heaven, He says, प्रभु ने जब हमें बताया when He's praying to the Father in heaven, in the Lord's prayer to the Father, He says, जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय पिता से प्रार्थना कर रहे थे तो वो कहते हैं, This is eternal life, that they may know you, the one true God, and Jesus Christ whom you have sent. ये जो अनंत काल का जीवन जो आपने मुझे दिया है वो भी जाने कि वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से मिला है। This is eternal life, that they may know you, the one true God, and Jesus Christ whom you have sent. तुझ सच्चे परमेश्वर को ज्ञान रखना यही अनंत जीवन है। That prayer is basically a prayer for the disciples. और ये चेलों के लिए थी प्रार्थना। And there the Lord identifies what is eternal life. और यहाँ पर प्रभु इस बात को प्रकट करते हैं कि अनंत काल का जीवन क्या है। Knowing God and knowing Christ whom He has sent. परमेश्वर को और प्रभु यीशु मसीह को जानना यही अनंत काल का जीवन है। At the point of time we turn to Christ wholeheartedly and receive Him to heart as Savior and Lord, that's the point of time we begin to know God. और जिस समय हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और पूरी रीति से मन फिराकर प्रभु की ओर फिरते हैं, वही हमारे जीवन का बिंदु होता है जहां पर हम प्रभु यीशु मसीह को जानना शुरू करते हैं। Till that point of time we know about God. उस समय तक हम परमेश्वर के बारे में जानते हैं। Look at the creation, we know there is a God who created everything. जब हम इस सृष्टि की ओर देखते हैं तो हम समझते हैं कि इस सृष्टि के पीछे कोई सृष्टि करता है। In Psalm 19 verse 1 it says, the heavens declare the glory of God, the skies proclaim the work of His hands. और भजन संहिता 19 और उसका पहला वचन ऐसा कहता है कि आकाश ईश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। And you can please read the second verse also. दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। And it talks about how the heavens they speak day by day, night by night. और कैसे दिन दिन से बातें करता है और रात रात को ज्ञान सिखाती है। Demonstrating there's a creator who created the heavens and the earth. और इसको जानना समझना कि इस सृष्टि के पीछे एक महान सृष्टिकर्ता है। But looking at these things, we know there is a God, there's a creator, and we know about God. और इस सृष्टि को देखकर हम इस बात को जानते हैं कि इसके पीछे सृष्टिकर्ता परमेश्वर है और हम परमेश्वर के बारे में जानकारी रखते हैं। I came to know the Lord on the 25th of May 1980 at 9:30 p.m. और भाई 1980 में 25 सितंबर 25 मई 25 मई 1980 को भाई ने प्रभु यीशु मसीह के विषय में जाना। That's the point of time I came to know the Lord. और वो भाई के जीवन का बिंदु था जब वो प्रभु यीशु मसीह को जान पाए। Till that point of time I knew about God. उस समय तक वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे लेकिन परमेश्वर है करके जानते थे। And from the age of 11 I began to seek after God. I used to go to the terrace of my house in Chennai, look at the stars and wonder who made those stars. और भाई 11 साल की वर्ष की उम्र से इस बात की चिंता मनन करते रहते थे कि परमेश्वर है, ईश्वर है कोई, और वो अपने छत में जाते थे और तारों को देखते थे, निहारते थे। I used to lie flat on my back, look at the stars and wonder who the creator of these stars, and I wanted to know him. I want to know you, the creator who made all these things, who made me and made the stars. और भाई अपनी छत के ऊपर पीठ के बल लेट जाते थे और आकाश की ओर आंखें उठाकर देखते रहते थे कि, और वो कहते थे कि हे सृष्टिकर्ता परमेश्वर, इस सृष्टि को बनाने वाले, मैं आपको जानना चाहता हूँ। We did not know God because our hearts are sinful, the sin
and God is perfect, so we cannot know God. We're cut off from और God. और हम परमेश्वर को जान नहीं सकते क्योंकि हमारा जीवन जो है वो पापमय जीवन है। हमारा जीवन हृदय पाप से भरा हुआ है, इसलिए हम सच्चे परमेश्वर को जान नहीं पाते। When he came to understand that by his blood he has cleansed our hearts of every sin, our hearts are made pure, and we can now have a relationship with God. और जब हम इस बात को समझ पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा से हमारा हृदय पवित्र किया जाता है, हमारा जीवन शुद्ध और पवित्र किया जाता है, तब हम प्रभु यीशु मसीह की पहचान में बढ़ जाते हैं। From that point of time, the Holy Spirit comes and dwells in us, and he reveals God's word to us, and God's word reveals God. और इसी क्षण जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, तब पवित्र आत्मा हमारे हृदय में तुरंत आ जाते हैं, और आने के बाद फिर वो परमेश्वर के बारे में हमें और बातों को प्रकट करते चलते हैं। We begin to know God at the point of time we receive Jesus into heart as Savior and Lord. और जिस क्षण हम प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लेते हैं, उसी क्षण हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानना हम शुरू करते हैं। The Bible tells us in 2 Corinthians chapter 3 verse 18 that at that point of time our hearts are open to understand God. और दूसरा कुरिन्थियों उसका तीसरा अध्याय और उसकी 18वीं आयत में वचन हमें ऐसे बताता है कि हम परमेश्वर के प्रताप को देखते हैं। Till that point of time a veil covers our hearts. और उस समय तक जब तक हम नहीं प्रभु को ग्रहण करते, हमारे पर्दा पड़ा रहता है हमारे हृदय में। And the Apostle Paul wrote about the Jews living during his time who had not recognized that Jesus is the Messiah. और फिर पौलुस उस समय के यहूदियों को लिख रहे हैं, कहते हैं कि उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाना। About the Jews, Paul is writing, the Jews living during his time who had not recognized that Jesus is the Messiah. और जो यहूदी पौलुस के समय में थे, वर्तमान थे, उन लोगों से वो कह रहे हैं कि तुमने मसीह को नहीं पहचाना। And he writes, actually writing to the Corinthians about the Jews. और वो कुरिन्थियों को तो लिख रहे हैं पत्री, लेकिन वो लिख रहे हैं यहूदियों के विषय में कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाना। That the hearts are the veil covering the hearts. क्योंकि उनका हृदय पर पर्दा पड़ा हुआ था। They can't understand the scriptures. और वो परमेश्वर के वचन को नहीं समझ सकते थे। Their minds are made dull. और उनका जो मन है, हृदय है, वो कमजोर हो गया था। And only when they turn to Christ, anybody turns to Christ, the heart is opened. लेकिन जब वो प्रभु यीशु मसीह की ओर फिरते हैं, तो उनका हृदय खुल जाता है। From that point of time, they begin to know God, and we are called to be people who grow in the knowledge of God. और उस समय हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं, और हमें प्रभु आह्वान करते हैं कि हम परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाएं। You can never know God completely while living in this world. और जब तक हम इस संसार में हैं, हम प्रभु को पूरी रीति से नहीं समझ पाएंगे। The 13th chapter of 1 Corinthians, the Apostle Paul wrote about how now we see a poor reflection, then we will see face to face. Then meaning when Christ comes the second time. और जब पौलुस पहला कुरिन्थियों 13वें अध्याय में लिखते हैं कि अभी हम धुंधला सा देखते हैं, लेकिन उस समय आमने सामने देखेंगे। और इसमें परंतु शब्द का कई बार उपयोग हुआ है। Now we read in the Bible about men of God who are used by God wonderfully. They were never satisfied with the knowledge of God. और जो लोग थे प्रभु को जिनको प्रभु ने अपने कार्य के लिए इस्तेमाल किया, वो कभी भी संतुष्ट नहीं हुए प्रभु के ज्ञान से, क्योंकि उनको और चाहिए था। We should never be complacent about the knowledge of God. और हम प्रभु के ज्ञान में ये ना समझें कि हमने पूरी रीति से हमने ज्ञान हासिल कर लिया है। In 1 Timothy chapter 6 verse 6 is written, godliness with contentment is great gain. Godliness with contentment is great gain. पहला तीमुथियुस 6:6 में इस रीति से लिखा है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। Now this contentment is not with regard to spiritual growth, it's regard to financial blessings. और ये जो यहाँ पे संतोष की चर्चा है, वो है आर्थिक बढ़ोतरी के बारे में। It's about financial resources. You should content whatever you've got. यहाँ पर यही लिखा है कि अगर आप संतुष्ट रहते हैं, तो आप जो कुछ आपके पास है उसमें आप
जो कुछ कमाई आपकी है उसमें आप संतोष करते हैं। We're called to be content with the material blessings, money, और financial blessings. और यहाँ पर जो हमें सिखाया जा रहा है वो है कि एक जो आर्थिक हमारी जो आशीषें हैं उसमें हमें संतोष करना है, ना कि आत्मिक बातों में। People are not content with material blessings, financial blessings. They want to become rich. और लोग जो आर्थिक बातों में संतुष्ट नहीं होते, वो चाहते हैं हम और धनी होते चले जाएं, And they love money. और फिर वो पैसों से प्रेम करने लगते हैं, The money they've got, they love money. और जितना उनके पास पैसा आता है उतना उनका प्रेम बढ़ता जाता है पैसे के प्रति। And First Timothy chapter 6 verse 10 says, "For the love of money is the root of all kinds of evil." और पहला तीमुथियुस 6 और उसका 10वीं आयत में लिखा है कि रुपया सब लोभ और सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। Some people eager for money have wandered away from the faith and pierced themselves with many griefs. और जो लोग बहुत पैसे की चाहत रखते हैं, उन्होंने अपने हृदय को छन्नी कर दिया है, ऐसा लिखा है। So it's important for us to know that contentment is regarded in this context with financial blessings, not spiritual blessings. तो यहाँ पर जो पौलुस बताना चाहते हैं वो ये है कि हम आर्थिक बातों में संतुष्ट होना है, ना कि आत्मिक बातों में। उस बात को यहाँ पे वर्णित कर रहे हैं। With regard to knowledge of God, you should never be content, never be complacent. Seek to know Him more and more. और ऐसे ही जब हम प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान रखते हैं तो हमें और प्रभु को जानने की चाहत होना चाहिए। There's a point of time when God told Moses that Moses had found favor in the sight of God. और एक ऐसा समय था मूसा के जीवन में जहां पर परमेश्वर ने ऐसा लिखा है, परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि मूसा ने परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह पाया। In fact, when they came from Egypt along the way, whenever they camped, there would be a tent of meeting in the middle where Moses would go to tent and talk to God, and God would come appear in that place in a cloud and have conversation with Moses. और जब ये मिस्र देश से निकल कर आ रहे थे और जंगल में जब 40 वर्ष की यात्रा में थे, तो जब भी इनका छावनी डलती थी, उस छावनी में चारों तरफ तो ये इजरायली लोग होते थे, बीच में प्रभु का तंबू होता था, और उस स्थान में जाकर के मूसा परमेश्वर से आमने सामने बातें करते थे उस तंबू में। It is called the tent of meeting. और उसको कहते हैं परमेश्वर से मिलने का तंबू। Whenever Moses went there, God will come upon that mountain in a cloud and converse with Moses. और जब मूसा को प्रभु से बात करना चाहते थे, तो मूसा उस तंबू के भीतर जाता था और उस तंबू को बादल घेर लेता था। परमेश्वर बादल में आकर के फिर तंबू में मूसा से बातें करते थे। It's not that God, basically came upon the tent and then Moses went. When Moses went, God appeared on the mountain. और ये नहीं था कि मूसा जब वहां पे जाता था तो तंबू में परमेश्वर आ जाते थे, ऐसा नहीं था। जब मूसा भीतर जाता था तो परमेश्वर उस तंबू में बादल के भीतर होकर उससे बातें करते थे। Which means whenever Moses went into a meeting, God would come there and talk to him. और जब मूसा उस भीतर उसके जाता था, तब परमेश्वर उस बादल में आकर उससे बातें करते थे। It depended upon Moses. All the time God was willing to talk with Moses. When Moses took initiative, God was always there to talk to him. और ये मूसा के ऊपर निर्भर करता था कि जब वो परमेश्वर से बात करना चाहता था तो उस तंबू के भीतर जाता था, लेकिन परमेश्वर हमेशा उसके लिए उपस्थित थे कि वो जब चाहे तब वहां जाकर के वो बात कर सकता था। परमेश्वर वहीं रहते थे बात करने के लिए, लेकिन मूसा का जब दिल करता था तब वो वहां जाता था और बात करता था। In the same way, whenever we want to talk to God and listen to God, He's there for us. He lives inside us. और इसी रीति से जब परमेश्वर हमारे हृदय में निवास करते हैं, हमें परमेश्वर से निरंतर बात करना है, लेकिन वो हमारे हृदय में बने रहते हैं। लेकिन ये हमारे ऊपर निर्भर करता है हम कब प्रभु से बात करना चाहते हैं। Once such time when Moses went to tent of meeting, God spoke to Moses and said how he had found favor in the sight of God. और एक ऐसी जब परमेश्वर के साथ उसकी संगति थी, उस संगति के लिए वो गया भीतर, तब परमेश्वर ने उसको बताया कि कैसा उसके ऊपर परमेश्वर ने अपना अनुग्रह प्रकट किया है। And Moses responds by saying in the book of Exodus, 33rd chapter verse 13, और निर्गमन 33 और उसकी 13 आयत में मूसा ने इस रीति से फिर वर्णन किया, If I have found favor in your sight, teach me your ways that I might know you and continue to find favor with you. और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। In other words, he said, Lord, if I'm favorable to you, if you're pleased with me,
I want to know you more. Teach me your ways that I might know you more. और उसने यही कहा कि हे प्रभु, मैंने अगर तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है तो मुझे अपनी गति समझा दे, And I अपनी would गति please you समझा more. दे ताकि मैं तेरा ज्ञान पाऊं And I would please you more. और मैं तेरे को और अधिक प्रसन्न करने पाऊं। Moses was not satisfied with knowing God, nor even pleasing God. He wanted to please him more and more. और मूसा इससे संतुष्ट नहीं था कि उसने प्रभु की दृष्टि में अनुग्रह पाया या वो प्रभु को प्रसन्न कर पाया। वो चाहता था कि मैं और अनुग्रह पाऊं, मैं और प्रसन्न करूं। How do you expect to know God more and more? By knowing the ways of God. God's ways and man's ways are different. He wanted to know the ways of God. और हम कैसे परमेश्वर को जान सकते हैं? उसके मार्गों में चलकर हम प्रभु को और जान सकते हैं। We'll come back to the ways of God later on. I'll talk about other people in the Bible also, like Paul, the Apostle Paul, for example. और हम प्रभु के मार्गों के विषय में हम बाद में हम चर्चा करेंगे फिर आकर के। और लेकिन अभी हम पौलुस के विषय में देख रहे हैं कि वो कैसे इस बात की चर्चा कर रहे हैं। In Philippians chapter 3, verse 10, he writes, फिलिपियों 3:10 में पौलुस ऐसा लिखते हैं, I want to know Christ in the power of the resurrection. वो कहते हैं कि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। I want to know Christ. मैं प्रभु यीशु को जानना चाहता हूं, मसीह को जानना चाहता हूं। He already knew Jesus. He had met him on the road to Damascus. वो तो जब दमिश्क के रास्ते पर जा रहा था तब तो प्रभु यीशु मसीह से मिल चुका था। He had a vision. He asked, Who are you, Lord? उसने दर्शन पाया और उसने पूछा, तू कौन है प्रभु? And the Lord said, I'm Jesus of Nazareth whom you are persecuting. और प्रभु ने कहा कि मैं यीशु नासरी हूं जिसे तू सताता है। He already knew Jesus is the Savior, the Messiah. He's the Christ. Paul already knew that. पौलुस इस बात को जानता था कि प्रभु यीशु मसीह मसीहा है और वो मृतकों में से जी उठा है। His message to the Jews was, this Jesus is the Christ, this Jesus is the Son of God. और उसका संदेश भी यही था कि प्रभु यीशु मसीह मसीहा है और वो परमेश्वर का पुत्र भी है। But then he was not satisfied with that. He wanted to know him more and more. लेकिन वो इससे संतुष्ट नहीं था इस बात से, वो प्रभु यीशु मसीह को और अधिक गहराई से जानना चाहता था। I want to know Christ and the power of the resurrection, the fellowship of sharing in the suffering, become like him in death, and somehow attain the resurrection of the dead. और फिर वो ऐसे कहता है कि मैं उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं, ताकि मैं उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। And he exhorted the church in Ephesus to know the Lord more and more. और फिर वो इफिसस की कलीसिया को भी परमेश्वर को और अधिक गहराई से जानने के विषय में आह्वान करते हैं। Ephesians chapter 1 verse 17, he writes to them and says, इफिसियों पहला अध्याय उसकी 17 आयत में 17 I keep asking the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, to give the spirit of wisdom and revelation that he may know him better. कि हमारे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। In other words, that he may know him better, spirit of wisdom and revelation to know him better. ताकि दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं हम परमेश्वर को और अधिक नजदीकी से पहचान सकें। Similarly, the apostle Peter wrote the last sentence of his second letter, the very last verse. और पतरस भी इसी रीति से अपने दूसरे पतरस तीसरे अध्याय की आखिरी आयत यानी 18वीं आयत में ऐसा लिखते हैं। Almost like a conclusion to the two letters. दोनों पत्रियों का वो जैसे निचोड़ जब लिख रहे हैं तब वो ऐसा लिखते हैं। A summary of the two letters. दोनों पत्रियों का निचोड़ जब वो लिख रहे हैं। He writes that grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। पहचान में knowledge of God, अनुग्रह, grace of God. परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। So all of us can keep on growing in the knowledge of God. हम हमेशा प्रभु की पहचान में बढ़ते जा सकते हैं। So how do we start off? What are we supposed to do? तो हमें इसके लिए क्या करना है? First of all, prepare our hearts to wanting to know him more and more, to have a passion to know him more and more. पहली बात, हम अपने हृदय में इस बात के लिए जागरूक हो, यह बहुत ही हमारी इच्छा हो, बलवंत इच्छा हो कि हम प्रभु को और अधिकाई से जानें। In the Old Testament time, the Lord told his people in Jeremiah 29 chapter verse 13. और यिर्मयाह 29 उसकी 13वीं आयत में पुराने नियम में प्रभु ने अपने लोगों से कहा, You will seek me and find me if you seek me with all your heart.
जर्मिया 29:13. उसकी 29 और उसकी Sorry, I 13 think it's आयत। Isaiah 29:13. Sorry, Isaiah 29:13. Or is it Jeremiah? Jeremiah only. Jeremiah 29:13. Please read it. हाँ मैं वेट यिर्मयाह यिर्मयाह की यिर्मयाह की पुस्तक उसका 29वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत में ऐसा लिखा है, तुम मुझे ढूंढोगे और हाँ। पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। Now, that is for seeking God, to know God. Once you know God, we still have to be people whose hearts are seeking after the heart of God. और जब हम परमेश्वर को तो जानते हैं, जान गए हैं, लेकिन हमें उस तरह के मनुष्यत्व को धारण करना है जो और प्रभु को जानना चाहता है। So, first step is to be not complacent. Say, Lord, I want to know you more and more by living even in this world. तो हमें इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाना, हमें प्रभु से कहना है, प्रभु मैं आपको और अधिकाई से मैं जानना या आपकी पहचान में बढ़ना चाहता हूँ। Like Paul says, I want to know Christ. I want to know him more. और जैसे पौलुस कहते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह को और जानना चाहता हूँ। Moses says, if you're pleased with me, teach me ways that I know you and please you more. और मूसा कहते हैं कि प्रभु अगर मैंने तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाया है तो मुझे अपनी गति समझा दे ताकि मैं तुझे और अधिकाई से पहचान लूं और जान लूं। Once we have that desire, how does God make us know him more and more? What is God, our role and God's role? और जैसे हमारे मन में ये इच्छा होती है कि हम प्रभु को जाने तो प्रभु हमारे को और अधिक अपने आप को प्रकट करते हैं। Our role is to have a passion, not to be complacent about our knowledge of God, but seek to know him more and more. और हमारी ओर से क्या होना चाहिए कि हमें प्रभु को और अधिकाई से जानने के लिए एक बलवंत इच्छा होनी चाहिए। And then recognize the ways by which God reveals himself to us. और फिर उन मार्गों को पहचानना है जिसके द्वारा से प्रभु हमें अपने आप को प्रकट करते हैं। Knowing God is by revelation, not by research. और प्रभु को जानना प्रभु के प्रगटीकरण के ऊपर है, ना कि हमारे खोज के ऊपर है। Now, in the Old Testament time we read, there was a point of time when the word of God was read, there were not many visions. और हम पुराने नियम में ऐसा पढ़ते हैं कि पुराने नियम में लोगों के पास बहुत दर्शन की कमी थी। First Samuel chapter 3 verse 1 says, पहला सैमुएल और उसका 3 और पहली आयत में ऐसा लिखा है, in those days the word of God was read, there were not many visions. पहला सैमुएल Chapter 3 verse 1. पहला सैमुएल 3 अध्याय और उसकी पहली आयत। पहला सैमुएल 3 अध्याय 3 अध्याय पहली आयत ना, उसी वर्ष और वो बालक सैमुएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था, और उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। Yeah, that's the verse. In those days, the word of God read, there were not many visions. There was darshan of God was very rare, and there was a famine of God's word. और प्रभु के वचन का बड़ा दुर्लभ था और बहुत कम दर्शन लोगों को मिलता था उन दिनों में जब सैमुएल बढ़ता गया। At that time, the Lord raised up Samuel to be later on to be a prophet of God. He was a small child. ऐसे समय में परमेश्वर ने सैमुएल को खड़ा किया कि वो प्रभु के लिए एक भविष्यवक्ता या दर्शी के रूप में खड़ा हो। And he was in the temple at Shiloh doing the things he is supposed to do. He did not know God at that time. और वो शीलो में था, उस मंदिर में था, और वो उस समय परमेश्वर को नहीं जानता था। And God called him by name, Samuel, Samuel. और परमेश्वर ने उसको पुकारा, सैमुएल, हे सैमुएल। And 3 times the Lord called him by name. और परमेश्वर ने 3 बार उसको नाम लेकर पुकारा। He was a child. और वो बहुत छोटा था, वो परमेश्वर को नहीं जानता था। That voice must have been an audible human voice, because he goes to Eli thinking, Eli called him. The Eli is the high priest. और उसने उस आवाज को सुना तो शायद जरूर मनुष्य की आवाज थी, इसलिए वो दौड़ करके एली के पास गया कि उसने सोचा शायद एली ने मुझे पुकारा है। Chapter 3 verse 7 says, Samuel did not yet know the Lord. The word was not revealed to him yet. 3 अध्याय उसकी 7वीं आयत में लिखा है, सैमुएल यहोवा को नहीं पहचानता था।
and the word of God was not revealed to him yet. और ना तो यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। So he went to Eli, thinking Eli called him. और उसने सोचा कि एली ने मुझे पुकारा है, इसलिए वो एली के पास गया। It happened 3 times. और ये 3 बार ये घटना हुई। Eli realized that God is still talking to Samuel. और एली समझ गया कि शायद परमेश्वर सैमुएल से बात कर रहा है। And Eli tells Samuel, next time he speaks to you, tell him, speak, Lord, his servant is listening. और एली ने कहा, जा, लेट जा, और अब की बार वो तुझे पुकारे तो कहना, बोल प्रभु तेरा दास सुन रहा है। And again God called Samuel by name twice, Samuel, Samuel. और फिर परमेश्वर ने 2 बार उसको पुकारा, सैमुएल, सैमुएल। This time he responds by saying, speak, Lord, his servant is listening. और फिर सैमुएल ने कहा, बोल प्रभु तेरा दास सुन रहा है। Then God began to speak more to Samuel. तो फिर प्रभु ने सैमुएल से और आगे बातें करना शुरू किया। Till he said, speak, Lord, servant is listening, God did not speak more. He only called him by name. और जब तक उसने ये नहीं कहा कि हे प्रभु बोल क्या आज्ञा है, तब तक प्रभु सिर्फ उसका नाम ही पुकार रहा था। Till he said, speak, Lord, servant is listening, God did not speak more. और जब तक उसने नहीं कहा कि हे प्रभु बोल तेरा दास सुन रहा है, तब तक प्रभु आगे नहीं बोला। Once he said that, Lord began to speak more. और जैसे उसने कहा कि बोल यहोवा सुनता तेरा दास, उसने आगे बोलना शुरू किया परमेश्वर। In 1 Samuel chapter 3, 19, 20, 21 says, और पहला सैमुएल उसका 3रा अध्याय 19, 20 और 21 आयत में ऐसा लिखा है, Lord was with Samuel as he grew up, और जैसे जैसे सैमुएल बड़ा होता गया, and he let none of his words fall to the ground. और Let none of his words fall to the ground. और उसकी कोई बात निष्फल नहीं हुई। And all Israel from Dan to Beersheba recognized that Samuel is attested as the prophet of God. और दान से लेकर बर्शेबा तक रहने वाले सारे इजरायलियों ने जान लिया कि सैमुएल यहोवा का नबी है, होने के लिए नियुक्त किया गया है। The Lord continued to appear at Shiloh, and he revealed himself to Samuel through his word, and Samuel's word came to all Israel. और यहोवा ने शीलो में फिर दर्शन दिया, क्योंकि यहोवा ने अपने आप को शीलो में सामुएल के ऊपर पर अपने वचन के द्वारा प्रकट किया। वचन के द्वारा प्रकट किया। He revealed himself to Samuel through his word. अपने वचन के द्वारा परमेश्वर ने सामुएल को प्रकट किया। The word of God reveals nature of God. और परमेश्वर का वचन परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट करता है। Now, God's ways and man's ways are different. परमेश्वर की गति और मनुष्य की गति अलग है, भिन्न है। God's thoughts and man's thoughts are different. मनुष्य का विचार और परमेश्वर का विचार अंतर है। God's ways and God's thoughts are revealed in the scriptures. परमेश्वर के इच्छाएं, परमेश्वर की योजनाएं, परमेश्वर के मार्ग परमेश्वर के वचन में प्रकट किए गए। The nature of God is revealed through scriptures. और परमेश्वर का स्वभाव परमेश्वर के वचन के द्वारा से प्रकट होता है। And knowing someone basically means knowing the likes and dislikes of a person. और अगर किसी व्यक्ति को हम जानते हैं, इसका मतलब यह है कि उसकी इच्छाओं को, उसकी पसंद और नापसंद को भी हम पहचानते हैं। The nature of that person. उसके स्वभाव को हम पहचानते हैं। Knowing God means knowing God's likes and dislikes. और अगर परमेश्वर को हम जानते हैं, तो परमेश्वर की इच्छाएं, पसंद क्या है और किस चीज को वो नापसंद करते हैं, वो हम जानते हैं। The likes and dislikes of God are all there in the scriptures. और परमेश्वर को क्या चीज अच्छी लगती है, क्या चीज अच्छी नहीं लगती है, ये वचन में प्रकट किया गया है। We study scriptures, we begin to understand the ways of God, the nature of God. और जितना हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, उतना परमेश्वर के मार्गों को, परमेश्वर की इच्छाओं को, योजनाओं को हम समझेंगे। I came to understand many years ago that it's easier to know God than to know people. और भाई कहते हैं कि कुछ वर्ष पहले मुझे इस बात को समझ में आया कि ये आसान है, प्रभु को जानना आसान है बनिस्बत इसके कि मनुष्यों को जान पाना। Because people change, God does not change. क्योंकि लोग तो हैं, आज कुछ हैं, कल बदल जाते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर कभी नहीं बदलता। In Malachi chapter 3 verse 6, God says, I the Lord do not change. और मलाकी उसका 3 और उसकी 6 आयत में प्रभु कहते हैं कि मैं परमेश्वर, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। God never changes, unchanging God. क्योंकि परमेश्वर कभी बदलता नहीं, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है।
People change. We change sometimes for the better, hopefully, sometimes for the worse. कहाँ हम बदल जाते हैं, कभी कभी अच्छाई के लिए, कभी कभी बुरे हो जाने के लिए भी हम बदल जाते हैं, But God is same. लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलते। Altogether perfect. There's no scope for God to improve his personality. He's always is perfect. परमेश्वर सिद्ध हैं और उसमें कुछ भी बदलाव, उनके स्वभाव में, उनके जीवन में कुछ भी बदलाव की गुंजाइश ही नहीं है, बदल ही नहीं सकते। The word of God reveals this nature of God. और जो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के इस स्वभाव को प्रकट करता है, Reveals the God's nature of what he likes, what he dislikes. और परमेश्वर के उस स्वभाव को प्रकट करता है कि परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता। He hates sin, he loves sinners. वो पाप से घृणा करते हैं, लेकिन पापियों से प्रेम करते हैं। He always hates sin, he always loves sinners. वो हमेशा पाप से घृणा करते हैं, लेकिन हमेशा पापियों से प्रेम करते हैं। Two things in life never change. दो चीजें जीवन में कभी नहीं परिवर्तित होती। In the book of Hebrews, chapter 6, verse 18, talks about two unchanging things. और इब्रानियों की पत्री उसका 6 और 18 आयत में हम पढ़ते हैं उन दो चीजों के बारे में जो कभी नहीं बदलती। One is God who never changes. एक तो परमेश्वर जो कभी नहीं बदलता, Other is the word of God that never changes. और दूसरा परमेश्वर का वचन जो कभी नहीं परिवर्तित होता, बदलता। In the 24th chapter of Matthew, verse 35, Jesus says, मत्ती की अंजील 24वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, 35. 24वां अध्याय उसकी 35वीं आयत में प्रभु कहते हैं, Heaven and earth will pass away, my word will never pass away. आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। So God's word never changes. God never changes. परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता और परमेश्वर कभी नहीं बदलता। And today when we study God's word, आज जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, we begin to know God more and more. हम परमेश्वर को और अधिकाई से जान पाते हैं। We are so blessed today we have the written word of God available to us in our hands. और आज हम इतने आशीषित लोग हैं क्योंकि परमेश्वर का लिखित वचन हमारे हाथों में, हमारे पास है। In those days, we never had a God's word as we have it today. और उन दिनों में, बीते पुराने दिनों में, परमेश्वर का वचन ऐसे लिखित रूप में सभी के पास नहीं था जैसे आज हमारे पास है। In the first century, they had the Old Testament scriptures available, the scrolls. पहली सदी के कलीसिया के पास जो चम्र पत्र होते थे, उस पर लिखा हुआ वचन के स्क्रोल होते थे। The Jews had the law and the prophets. और यहूदियों के पास व्यवस्था थी और भविष्यवक्ता भी थे। Not 66 books of the Bible that we have today. वो 66 पुस्तकें नहीं थी जो आज हमारे पास वचन में हैं। In fact, the last book to be written apparently was the letters of John and the Gospel of John and Revelation, written by around AD 90. और आखिरी जो लिखी गई पुस्तकें हैं वो है यूहन्ना की अंजील और यूहन्ना की पत्रियां और प्रकाशित वाक्य, लगभग ईसा पूर्व 90 में लिखा गया। 66 books we have got today. Now अब हमारे पास 66 पुस्तकें They हैं। all reveal God's nature. ये पूरी पुस्तकें जो हैं ये परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट करती हैं। God's word reveals God's nature and the Holy Spirit reveals God's word. और परमेश्वर का वचन जो है वो परमेश्वर के स्वभाव को, विचारों को प्रकट करता है और परमेश्वर का इच्छाओं को प्रकट करता है परमेश्वर का वचन। No. The Holy Spirit reveals God's word. और पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन को प्रकट करते हैं। Let me repeat. The word of God reveals God's nature, reveals God, and Holy Spirit reveals the word of God. और परमेश्वर का वचन जो है वो परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट करता है और पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन को प्रकट करते हैं। Today we have Holy Spirit living inside us. आज पवित्र आत्मा हमारे हृदयों में, हमारे भीतर निवास करते हैं। How blessed we are today to have Holy Spirit living inside us, who is the author of the Bible. और आज हम कितने प्रभु का कैसा हमारे ऊपर अनुग्रह है कि परमेश्वर का आत्मा हमारे हृदय में वास करता है और परमेश्वर के विचारों को, योजनाओं को हमें प्रकट करता है, वचन को प्रकट करता है। Author of the Bible lives inside us. परमेश्वर के वचन का लेखक हमारे हृदय में निवास करता है। And he is our teacher. और वही हमारा शिक्षक भी है। He will reveal God's word to us and God's word reveals God to us. वो परमेश्वर के वचन को हमें प्रकट करता है और परमेश्वर अपने वचन को प्रकट करते हैं। All of us are called to have fellowship with the Holy Spirit. और हमें ये आह्वान किया गया है कि हमें पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता में बने रहना है। He will teach us God's word.
वो हमें परमेश्वर के वचन को सिखाएंगे। John 14:26. यूहन्ना 14:26 में हम पढ़ते हैं, And he will reveal to us God's ways and also remind us of God's word. वो हमारी सहायता करेंगे पवित्र और जो वो हमें Read that in सिखाएंगे। Hindi, John 14:26. हाँ, Please read it. परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता हमारे मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। If you want to know God more and more, we should study scriptures. Say, Holy Spirit, teach me your word and let me understand God's nature and please God through my life. और हमें अगर परमेश्वर को और अधिकाई से जानना है तो हमें प्रार्थना करना है, हे प्रभु अपने वचन के द्वारा से मुझे सिखा और अपने पवित्र आत्मा के द्वारा से मुझे सिखा, ताकि मैं तुम्हें और प्रसन्न कर सकूं और अनुग्रह पा सकूं। There are many ways by which you can grow in the knowledge of God. और ऐसे और भी कई तरह से रास्ते हैं जिसके द्वारा से हम परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ सकते हैं। Today I just covered, not even covered completely, the word of God and carry on next week and probably even the week after that. और आज हमने उसका जो पहला जो चरण था, परमेश्वर के वचन के द्वारा हम परमेश्वर के ज्ञान को पा सकते हैं या बढ़ सकते हैं पहचान में, और आने वाले सप्ताहों में और आगे देखेंगे हम कि किन किन मार्गों के द्वारा से हम प्रभु के पहचान में बढ़ सकते हैं। My prayer for all of us is that we'll never be complacent about the knowledge of God. और पहली बात भाई कहते हैं कि मैं आह्वान करता हूं कि हम में से कोई भी इस बात में संतुष्ट ना हो कि हम परमेश्वर के ज्ञान में हम पूरी रीति से हमने ज्ञान पा लिया, हमें और चाहिए, इस बात को हम And मानते the रहें। prayer is that all of us will have an appetite to know Him more and more, never lose that appetite to know God more and more. और हमारी जो भूख है कि परमेश्वर को और जानना है, वो संतुष्ट नहीं होनी चाहिए, वो बढ़ती जानी चाहिए कि हम और भूख के साथ प्रभु को ढूंढें, आत्मिक भूख के God साथ। bless you all, and please listen to the recording of today's message before you come next Wednesday, so that we can have a continuity of our messages. और जब हम अगली बार आएंगे तो इस संदेश को कृपया करके सुन लीजिएगा, जो रिकॉर्डिंग है उसको आप सुन लें और सुन करके आए, ताकि हम मतलब इस हफ्ते में हमने क्या सीखा है उसको हम अगले हफ्ते में उसका रिपीट ना करना पड़े। We'll cover a series on this topic of knowing God, because that's the greatest thing, to know Him, that's eternal life, to know Him and know Jesus whom He sent. और एक श्रृंखला में भाई इस बात को पूरी रीति से हमें समझाएंगे कि कौन कौन से रास्ते हैं, कौन कौन से मार्ग हैं जिसके द्वारा से हम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जा सकते हैं। God bless you all. प्रभु आप सबको आशीष दे। Thank you, brother.